कर रहे हैं, जैसा कि विगत 25 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आपको यह जानकर हर्ष होना चाहिए कि हमारे परिवार में 706 छात्राएं एवं 50 अध्यापकों का तथा गैर अध्यापक ज्वाना ओहरे उपना आहारे युको कर रहा हूँ। बच्चों को एक बेहतर दिशा देते हुए आज 26वें वार्षिकोत्सव को मना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को, संपूर्ण विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाइयां देता हूं, हार्दिक अभिनंदन। क्लैपिंग तो होनी चाहिए बच्चों के लिए। मैं बार बार वॉच कर रहा हूं कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो नहीं चाहिए बच्चों के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। तो जितना अधिक तालियां होंगी उतना एनर्जेटिक होके बच्चे अपना परफॉर्मेंस You are that should make Ninja queen. Better she take the kingdom under her big body. Your dad jokes will have. I cannot wait to see you two become king. You will be to Hamlet. You will make a great king, and you already have the queen. What? Queen? Oh, little Ophelia, my dear Ophelia. Stop it. See you later, Hamlet. Just a few more months until I leave for home. Then what? One day, Hamlet received a letter from Ophelia that mentioned his father is terribly ill, so he decided to return his kingdom. फिर एक दिन राजकुमार हैमलेट को एक पत्र मिलता है जो कि ओफेलिया द्वारा भेजा जाता है। उस पत्र में उन्हें यह सूचना मिलती है कि उनके पिताजी का स्वास्थ्य खराब है। यह सुनते ही राजकुमार हैमलेट अपने राज्य inform you that your father is the best. Oh, father! What could happen to him? I'm really worried about him. No, father! After reaching to Hamlet's kingdom, Hamlet gets news that his father has passed away. राज्य वापस लौटने के बाद राजकुमार हैमलेट को पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। यह सुनकर राजकुमार हैमलेट बहुत दुखी हो जाते हैं। Hamlet, my boy, Uncle Claudius. I'm sorry about your father. He was like a brother to me. What? He was your brother. That's what I said. No, it's really hard for you. So I was thinking I could be a king. What? King? Oh, just a temporary one until you're ready to take the burden of the crown. Hamlet, you feel terrible here. Why don't you return to college? But I feel calmer here with my people. People, as you are not their king. We are his people and Hamlet said he would rather stay. Tell your daughter to stay away from my nephew. It will be for her own goodness. Certainly I shall draw all power from the puny child and become a king. And for own good, let's proceed with our plans. Said, the horses are sad, even the water sad. Let's find Hamlet. Arrived to Hamlet's kingdom, and they were Prince Rosen. उन्होंने दस्तक दी और वे थे राजकुमार रोजन और राजकुमार गिल्डन। Rosen, Hamlet, what are you doing here? Well, we never heard from you. We sent 2,000 of letters, but never got one back. I am sorry, guys. I have just been rather gloomy. That's why we are here. We can go fishing or swimming with a crocodile. Maybe not that. Hey, I don't need that. Uncle? Hamlet, you have to go with your all friends and take Hornato too. Hornato? Oh, you mean Horatio? Yes, you and your all friends go a whole month of fun and don't worry about the kingdom. I will take care of it. But Hamlet, your father wouldn't want you moving around and do it for him.
के ज्वाना ओहो रे कोना आहा रे कोना ओहो रे कोना कहाँ रयू अड्डुटिना कहाँ रयू अड्डुटिना काका गजनावा आहा रे कोना ओहो रे कोना आहा रे कोना इन्फोनुले सब भूलली इन्फोनुले सब भूलली आस पड़ोस जाना आहा रे कोना ओहो रे कोना आहा रे कोना ओहो रे कोना आहा रे कोना फूल खेल कूदिबे ब्याव बखत खेल कूदिबे ब्याव बखत डर डर घर है आना आहा रे कोना ओहो रे कोना आहा रे कोना। अध्यक्षा अल्मोड़ा और विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेवती देवी, नगर पंचायत अध्यक्षा चौखुटिया और श्रीमती किरण बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख चौखुटिया आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण विद श्री शंकर सिंह बिष्ट जी एवं चौखुटिया क्षेत्र की उपस्थित जनता, अभिभावक, छात्र छात्राएं, सभी सम्मानित अध्यापक वर्ग व समस्त विद्यालय स्टाफ का अपने अंतर्मन से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, यह पूर्व विदित है कि इस विद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1999 में मात्र 12 बच्चों को लेकर श्रीमान आनंद सिंह किरोला जी एवं श्री भगवान सिंह बिष्ट जी ने की थी और इसका जो स्वरूप बाल विकास विद्या मंदिर के मार्ग से होता हुआ दिशा शिक्षण संस्थान के रूप में सितंबर 1999 में दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान वीरेंद्र बिष्ट जी, श्री ललित सिंह कड़ियाल जी, श्री राजेंद्र तिवारी जी, श्री कैलाश पांडे जी रहे। वर्तमान में इसका प्रतिनिधित्व श्री आनंद सिंह किरोला जी उसी तन मन धन से कर रहे हैं जैसा कि विगत 25 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आपको यह जानकर हर्ष होना चाहिए कि हमारे परिवार में 700 छात्र छात्राएं एवं 50 अध्यापकों का तथा गैर अध्यापक वर्ग सम्मिलन है। मैं विशेष रूप से अभिभावकों, बच्चों के संरक्षक व माता पिताओं का आभारी हूँ कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में वे हमसे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहने की कामना करता हूँ। महोदय, विदित हो कि सत्र 2023-24 से विद्यालय 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहा है। उत्तराखंड शिक्षा परिषद रामनगर से मान्यता प्राप्त कर हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन का कार्य पिछले कई सत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले सत्र 2021-22 में हमारे विद्यालय की छात्रा निहारिका पंत ने मेरिट लिस्ट में 21वां स्थान प्राप्त किया तथा सत्र 2023-24 में नैन्सी मेहरा ने मेरिट लिस्ट में 19वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय तथा अभिभावक जनों को गौरवान्वित किया और ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अगले सत्र 2025-26 से हम इंटरमीडिएट प्रथम वर्षीय कॉमर्स कला एवं कला संकाय की कक्षाएं संचालित करने की ओर प्रयासरत हैं। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से विदित हैं कि कोरोना पैंडेमिक महामारी के कारण पिछले 2-3 सत्रों में विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पाई। हमारा विद्यालय भी इसी समस्या से ग्रसित रहा, जिसका नुकसान अभी तक बच्चों में दिखाई देता है। महोदय, एक अन्य बात का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विद्यालय में वर्तमान समय में लगभग 60 से अधिक छात्र छात्राएं जो RTE के तहत मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चे समाज में वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शुल्क देने में भी असमर्थ हैं, लेकिन इन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना हमें एक अलग प्रकार की आत्मीय सुख संतुष्टि की अनुभूति प्रदान करता है। महोदय, इस आधुनिक युग में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बहुत तेजी से बदल रहा है। आप यह जानकर हर्षित होंगे कि अभी कुछ वर्षों पूर्व जहां कक्षाओं में शिक्षण हेतु ब्लैक बोर्ड व चाक का इस्तेमाल किया जाता था, विगत वर्षों से उनके स्थान पर डिजिटल बोर्ड व डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षण जारी है। महोदय, शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो कि जरूरी है
ताकि हमारे बच्चे भी बाहर आके उनको ऐसा ना लगे कि हम अभी किस माहौल में हैं। तो उनको यहीं से तैयार करने की जिम्मेदारी भी विद्यालय प्रशासन जो है उठाता है। मैं बच्चों में इसमें समग्र विकास हो, इसके लिए भी एक्टिविटीज, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विद्यालय के द्वारा की जाती है। यह बात उल्लेखनीय है कि वर्तमान सत्र में अंतर विद्यालय जनपदी राज्यपदी विभिन्न प्रतियोगिताओं व सामान्य ज्ञान परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त कर अब वो विद्यालय का नाम बढ़ाया है। इसमें हमारे कई बच्चे पार्टिसिपेट करके आगे बढ़े हैं। महोदय, आने वाले वर्षों में गुणवत्तापरक शिक्षा देना हमारा सर्वप्रेरक उद्देश्य होगा। सीमित संसाधनों व सरकारी व गैर सरकारी सहायता के बगैर भी आज सरकार के इस नेक टू नेक फाइट कंपटीशन में भी छात्र छात्राओं को इस प्रकार तैयार करना हमारा लक्ष्य होगा। वह स्वतः प्रेरित आत्मबल के साथ जीवन रूपी रण में अपना स्थान बनाता हुआ आगे बढ़े, यह हमारी हमेशा बच्चों के साथ प्रयासरत हम हमेशा रहते हैं। महोदय, विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा देवरक्षिता ने विगत 2 वर्षों से लगातार 2 वर्षों से विज्ञान प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दर्ज कर सभी को गौरवान्वित किया है, जो कि पूरा उत्तराखंड में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 11वीं कक्षा की छात्रा याशिका तिवारी ने ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया है। राज्य का, जिले का, चकोटिया नगर व विद्यालय का नाम ऊंचा किया है हमारे इन सभी विद्यार्थियों ने। विद्यालय प्रबंधन सीनियर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ साथ एनसीसी प्रशिक्षण हेतु प्रयासरत है। प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार आगामी सत्र से इस हेतु प्रशिक्षण की अनुमति मिल जाएगी, ऐसी आशा है। महोदय, इसके अतिरिक्त चौकुटिया नगर क्षेत्र के निवासियों की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए स्वप्रेरित हो जमड़िया ग्राम के पूर्व प्रधान श्री मनोहर सिंह रावत जी, पुत्र श्री पदम सिंह रावत जी ने 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करते हुए 2 वर्षों तक की उनकी फीस का वहन किया। इसी क्रम में अभिभावकगण श्रीमती सोनी तिवारी जी, श्री विनोद चंद तिवारी जी ने, जो कि भटकोट के हैं, अपने स्वर्गीय पुत्र की याद में एक कक्ष निर्माण हेतु 30,000 रुपए का धनराशि प्राप्त किया है। इस कक्ष का निर्माण फाउंडेशन स्टोर का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है। हिमगिरी फाउंडेशन के संस्थापक श्री मोहन शर्मा जी, पुत्र श्री हरिदास शर्मा जी की ओर से भी इंटरमीडिएट की एक छात्रा की फीस लगातार उनके द्वारा दी जाती है और अपने स्तर से वो हमेशा सहयोग करते रहते हैं स्कूल को। इन सभी लोगों का, जो कि ऐसी भावना रखते हैं कि हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों का उत्थान हो, कोई बच्चा ना पिछड़े, तो ऐसे भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कि समय समय पर हमें सहयोग करते हैं और ऐसे बच्चों के सहयोग हेतु आगे आते हैं। महोदय, इस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री गोविंद सिंह नेगी, पुत्र श्री केदार सिंह नेगी जी जमड़िया के, इन्होंने भी लगातार 2 वर्षों तक 2 बच्चों की फीस का वहन किया। महोदय, विद्यालय प्रबंधन आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता है एवं इस पुनीत कार्य में इस प्रकार से सहयोग की इच्छा रखने वालों का हार्दिक रूप से स्वागत करता है। किसी छात्र को इंजीनियर, डॉक्टर, उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने का वादा कभी भी विद्यालय ने नहीं किया, लेकिन हमारे गांव, समाज, देश को एक ऐसा नागरिक मिले जो घर समाज को एक नैतिक शिक्षा दे सके, और इस बात का भरोसा हम अवश्य दिला सकते हैं कि हम एक ऐसे पौधों को तैयार करें। दिशा कॉन्वेंट स्कूल के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मंचासीन सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के नौनिहाल, आप सभी लोगों को आज के इस पावन पर्व की हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। पिछले, अगर दिशा कॉन्वेंट की बात करूं तो दिशा कॉन्वेंट
जितना मैंने इसके बारे में सुना है, जितना मैंने इसके बारे में समझा है, इसने वहां से शुरू किया जहां इसने एक बीज बोया था, कुछ बच्चों के साथ शुरू किया था, और आज ये सब लोगों की मेहनत, पूरे स्कूल परिवार की मेहनत, अभिभावकों की मेहनत और जितने बच्चे हैं उन लोगों की मेहनत के बदौलत आप निरंतर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए, हमारे क्षेत्र के बच्चों को एक बेहतर दिशा देते हुए आज 26वें वार्षिकोत्सव को मना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को, संपूर्ण विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाइयां देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के प्रोग्राम शायद सभी बच्चे थक भी गए होंगे, सभी लोग थक भी गए होंगे और आप सुनना भी नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन क्या करें, मेरे को बोला गया है, मैंने बोलना है और आप बैठे हैं तो आपको सुनना है। तो आज के कार्यक्रम का जो थीम था आरोहण। आरोहण का मतलब होता है प्रगति करना, बढ़ना या फिर चढ़ना। तो हम भी लगातार, हमारे विद्यालय परिवार भी लगातार इसी प्रगति को करते आ रहा है और लेकिन हमारे जीवन में जो लक्ष्य होना चाहिए, जो हमने देखना चाहिए कि हमें पता है कि हमें आरोहण करना है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो आरोहण हो रहा है, हम जिस दिशा की ओर आरोहण कर रहे हैं, कहीं वो दिशा हमें गलत ओर तो नहीं लेके जा रही है, कहीं हमारा आरोहण गलत जगह तो नहीं जा रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए, तब जाके उस लक्ष्य की ओर आरोहण करना चाहिए, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लगातार अपने बचपन से लेकर जिस ओर आरोहण कर रहे हैं, उसका एंड, उसका अंत कहीं एक बड़ी परेशानी है, कहीं एक बड़ी चुनौती खड़ी ना कर दे हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें अपने आरोहण का लक्ष्य निर्धारित करना होता है, उसके बाद उस ओर मुड़ना होता है। मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि प्रोग्राम का भी लगभग समापन की ओर है और सभी लोगों को घर भी जाना है और बच्चे खास तौर पे थके हुए हैं, तो मैं अपनी बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः एक बार विद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग लगातार हमारे क्षेत्र में शिक्षा के स्तरों को एक नई आयाम तक पहुंचा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बच्चे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सतत भविष्य की ओर जाएंगे। और आज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए और सभी विद्यालय परिवार और आदरणीय किरोला सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। For friends, we sing for love and we sing for lovely people around us. But this passionate singer is going to make us emotional. A father-daughter bond is often very strong, so separation can feel like a severing of vital emotional connection. When a daughter is separated from her father, she may experience a complex mix of emotion, including sadness, loneliness, anxiety, insecurity, fear, grief, and a sense of loss. Essentially feeling a deep void in her life due to the absence of a significant source of love. Expressing the same now, we have one of the multi-talented students of our school, Harshita Pant, with her heart-wrenching song, Sach Poochti Huye, Batao Na Babuji. सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी।
स्वागत। समापन प्रोग्राम का समापन करते हैं। आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा और सभी ने सहयोग किया, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है।